We are quite late because once again, Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Hope you people are doing well. Um, Actually, I was a little bit busy in some other work, so we started late actually. But not a big deal. That time is also enough. Half an hour is also enough for us. So now let us start with the session. Okay. Um, Out of these experiments, we have already covered first three experiment. Okay. And now let us focus on the fourth one. Fourth one is also simple. You just need to study about the system called different system call, and here we are related with the process management system call. Okay, we want to study the system call which are related with the process management. Okay, so I'm just let me just focus on the fourth one. I hope you can see this particular screen is visible to you, and my voice is also audible. Please let me know if it is so, then we can continue. Am I audible? Is the screen visible? Yes, sir. मैं जब तक आगे नहीं बनना मैं बोलते जाऊँ जबरदस्ती का फिर पता चला कि आवाज ही नहीं आ रही है. Okay, so let it be. So let us start with the fourth one. Fourth one is quite simple. Just need, as I told you that you have to study first. This is all from your side only, that you have to study first about the system call, which is related with the process management. Okay. So whatever part what we have studied in the theory part, that is regarding system call. So we know what is basically system call. So system calls are the interface which act as an interface between the दो पार्ट के बीच में मैंने आप लोगों को बताया था कि दोनों के बीच में इंटरफेस एज एक्ट एज ए इंटरफेस करता है. एंड एप्लीकेशन और आपका एप्लीकेशन और आपका आई थिंक प्रोसेसर है, तो दोनों के बीच के अंदर ये आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है. So basically, your system call, a lot of system calls have been provided in order to perform any task. Because when we open any file, just I'm giving you one example. When you open any folder or when you double click on any file, okay, this is maybe that is a video file or audio file. So when you click on that particular file, okay, so the file related system calls will get activated. Okay, because I'm double clicking on that particular file, so that file is being opened. If it is a text file, then it will open. So we are just clicking on that particular file. Who is telling to the system that you have to open this particular file, not you have to copy the file. आपको उसको कॉपी नहीं करना, आपको उसको ओपन करना. ये कौन बोल रहा है? मैंने वहां पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, एंड ऑन सम अदर लोकेशन पे जाके मैंने इसको पेस्ट किया. Who is there who is telling the system that you have to copy this particular xyz.txt file and you have to paste it on any other location? Okay, who's telling all this thing? Okay, these are the system call which is doing or which is performing these tasks basically. Okay, so in all the, we have seen, if you have not forgot, then if you remember, then we have learned different categories of the system call, I think. So regarding file management, regarding process management, regarding information, regarding IO, regarding memory, regarding storage. So these were the different categories we have seen, and in that particular categories we have different system calls. Okay, अगर आपको याद होगा तो उसके अंदर आपको इजीली आपके स्लाइड में भी मिल जाएगा. So those are the available system calls. Okay, so they perform their related task in their domain, in their category. Okay, like you have open any application. So while opening an application, whenever system opens any application, your system has to provide some sort of storage to that application. जब तक मेमोरी में स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करेगा, रैम प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आपका एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो पाएगा. दैट्स अ सिंपल लॉजिक. ओके, so in the same way, when we double click on any application, so it will just open. Okay, for opening, it will contact the memory management का system call. भाई मुझे इसके लिए ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए स्पेस चाहिए, वगैरह वगैरह. जहां जहां कंसर्न है वहां के सिस्टम कॉल को एक्टिवेट करेगा, बोलेगा, और वो सिस्टम कॉल्स के टर्म में काम.
ठीक है. सो दे वर्क इन टर्म्स ऑफ सिस्टम कॉल. ओके. तो वैसे ही हमारा आयो का भी है, वैसे ही हमारा फाइल मैनेजमेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया. So yeah, all these tasks are being performed with the help of system call. So here what we have to do, the task is very simple. You need to study, you need to find out, and you need to write a C program. Basically एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम है, मुझे लगता है ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन का एक एक सी प्रोग्राम है, ज्यादा नहीं रहेगा, उससे बड़ा नहीं. ओके. So experiment number 4 क्या करना है, basically I'm just focusing on that only. We have to create a child process in a Linux using a fork system call. Okay, so we came to know that for creating a child process of a parent process, you can use fork system call. So fork is a method. Okay, so fork is a method from which you can make, is a system call from which you can make a child of the parent process. Okay, so fork system call एक हमारे दिमाग में है. ठीक है. From the child, from the child process obtain the process id भी आपको उसकी get करना है, of both child and parent by using get pid and get ppid. So get pid and get ppid are the factory methods. These are called as factory methods provided by the fork system call. Okay, so these two methods like get pid and get ppid are the two methods which will provide you the id of the child process and id of the पेरेंट प्रोसेस. ओके, तो दोनों के आईडीज को लेने के लिए आप ये दो मेथड यूज कर सकते हैं. ओके, तो फॉर सिस्टम कॉल यूज करके चाइल्ड बनाने का, और दोनों का आईडी आप इजीली निकाल. हार्डली 4 या 5 लाइन का कोड रहेगा, बट दैट्स अप टू यू. यू हैव टू फाइंड, even you don't even if you find the code from the internet, not a big deal, but just try to understand. एक एक लाइन को आप थोड़ा सा आपको समझना है. ठीक है, तो ये करना है इसमें, और कुछ नहीं. The crux of this fourth experiment is that you study about the different system call. Okay, so when you will write the write up of this particular experiment, then you need to study different categories of system call what we have studied in the theory part. Okay, that all the system call you need to mention in the theory part, that is in the write up part. Okay, so write up part में आपको सबसे पहले लिखना है. सबसे पहले let me show you with the help of one new file. So this is first aim will come. Okay, what will be the aim? So that aim I'll just copy so that it will easily come to know about it. चलो copy ऐसे ही कर लेते हैं, Control C. So this is, so it becomes my aim. You all know what are the different documentation part that is needed, your name, your roll number, and all that part. Okay, after that aim, you will come with the theory part. So theory, in theory you will start with the system call first. Okay, what is system calls. Okay, अब सिस्टम कॉल के बारे में आपने बहुत कुछ लिखा, सिस्टम कॉल्स के बारे में फिर आपने लिखने के बाद में आप कैटेगरीज बताएंगे, कैटेगरीज. ठीक है, तो कैटेगरीज आपके 1 2 3 4 5 डिफरेंट कैटेगरीज है. सो यू आर गोइंग टू मेंशन ऑल दोस कैटेगरीज लाइकवाइज. और उसमें जो सिस्टम कॉल अवेलेबल है उसमें आपका प्रोसेस मैनेजमेंट है, उसका आपका फाइल मैनेजमेंट है, और उसके बाद में आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, देन उसके बाद में आपका आईओ मैनेजमेंट है, उसके बाद में आपका मेमोरी मैनेजमेंट है, एंड ऑल दैट. जितनी भी कैटेगरीज है वॉट एवर वी हैव मेंशन्ड, so that you need to take out the theory part from those documents, and then you have to paste it over. Okay, so you will mention all the categories, like जो categories सबके बारे में. एंड एक सेकेंड में, जब मैं उसको ओपन ही कर लेता हूँ बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट, तो आपको बताना भी हो जाएगा सिस्टम कॉल. अरे पहुंच गया फटाफट फटाफट. See, we learn about the system call. Okay, from this particular slide, system call provide an interface to the services made available by the operating system. So ये कुछ theory है, लेकिन आपको और theory आपको लिखना पड़ेगी. This particular amount of theory is not enough for write up. Okay, and the different categories you see. A system call provide interface between the process and the operating system. So whatever process from which you are working, so that process and your operating system के बीच में काम कराने के लिए हमारा system call. It allows the user level process to request services from OS and all that, and then system calls can be grouped into 5 major categories.
process control, file management, device management, information maintenance, communication. Okay, I just forgot about the communication. So these are the different 5 categories you have to mention over here. कहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर मेंशन करना है आपको, जो हमने लिखा है इसको हटा के। उसके बाद में फिर आपको then you have to see, this is regarding the process control. Okay, so these are the end, abort, load, execute, create process, terminate process, allocate and free memory, then get process attributes and set process attributes. These are the system call which are present in the process control. Okay, अब उसके अंदर process control के regarding जो आपको second column दिख रहा है, the column which you see in the second one. Okay, so these are the system call, these are the method which are used for the implementation purpose. अब implementation के लिए आप end तो नहीं use करने वाले, load तो नहीं use करने वाले, we are not going to use the terminate process like this system call. Okay, so you have to process, you have to use some sort of method. Okay, so these methods are over here. Okay, मैंने यहाँ mention किया था. ठीक है, so create process, exit process, wait for single object. So these are the method which are used in Windows. Okay, these are the Windows system call. And the right side जो देख रहे हैं आप third column, these are the system call or the method which are in the Linux operating system. Okay, so we are so we will be focusing on the third column, that is fork. You can अभी यहाँ पर क्या बोला आपको उसने, we have to create a child process using fork system call. Okay, so the fork system call it is already provided. ठीक है, so यहाँ पर जो हम लोग का जो experiment है, this experiment is basically related with the process control system call. Okay, so we have to use fork system call. The methods are not given over here, so we have to use get PID and get PPID. Okay, so we have to use those methods. Okay, so just for your reference, I opened this particular document. Okay, so what you need to do, you can just simply use a fork system call. Fork, आप जैसी fork लिखोगे ना तो एक आपका child process create होगा. So you can also use, अब आपको कैसे use करना है, you can just go through. Let me see whether I have any program of the last year. कौन सा ये experiment, fourth वाला experiment है. See the fork system call. Fork मैंने use किया, खाली इसको मैंने अलग से use किया था. And one more is there, if you want to try, then you can also try. और इसको ट्राई करने से पहले अपने सारे एप्लीकेशन वगैरह, अच्छा आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर के बाद. दिस इज इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल. इसको आपको मैं शेयर करूंगा, आप उसको कॉपी करके पास में रखो. दिस इज अ फॉग बॉम्ब. ओके, सो फॉग बॉम्ब आपके क्या करेगा, आपके सिस्टम को हैंग कर देगा. यू कांट इवन यूज योर सिस्टम. ओके, आपको ट्राई करना, लेकिन सिस्टम को जब आपको बंद करना रहे या डायरेक्ट बंद करना है तभी ट्राई. सो लेट मी शो यू द फॉग सिस्टम कॉल, व्हाई इट इज, हाउ इट इज यूज्ड. अच्छा, फॉग सिस्टम कॉल आपका कैसे काम करता है, यू कैन जस्ट लुक एट द प्रोग्राम. योर फॉग सिस्टम कॉल will always give you one integer value. Okay, if that integer value is 0, अगर कभी फॉर एग्जांपल अगर आप फॉग सिस्टम कॉल यूज करते हैं, अगर आप फॉग मेथड यूज करते हैं, तो फॉग मेथड जब आप लोग यूज करेंगे तो किसके लिए यूज करेंगे, बेसिकली इन ऑर्डर टू क्रिएट द चाइल्ड प्रोसेस. ओके, तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने के लिए आप फॉग सिस्टम कॉल यूज करें, तो उसके अंदर कुछ कुछ उसकी वैल्यूज होती है. व्हेन यू विल सर्च फॉर द, एक सेकंड आपको मैं सर्च करके ही बताता हूँ, अदरवाइज विल कंफ्यूज. कहाँ है रे भाई. फॉग सिस्टम कॉल फॉग गिग्स फॉर गिग्स पे चेक कर लेते हैं. बेसिकली इट प्रोवाइड 3 वैल्यूज. ओके, अगर आपका फॉग सिस्टम, अगर कभी चाइल्ड प्रोसेस सक्सेसफुली क्रिएट हो गया तो आपको वैल्यू मिलेगी 0. ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शंस है, पहले आपको मैं वो बता दूं. सी, नेगेटिव वैल्यू, zero value and positive value. Okay, so fork is a system call which will return you, you know, 3 values: negative value, positive value and zero value. अगर जीरो वैल्यू हुआ इसका मतलब कि आपका जो चाइल्ड प्रोसेस है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है. ठीक है, so fork method is the one system call from which you can create a child process. और हमको वही बोला उसने, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करने का बोला है, so we can use the fork system call. See, it takes no parameter. Your fork method, it is not taking any parameter and returns an integer value. It returns integer value. Below are the different values returned by this fork system call. One is the negative value. Negative value मतलब कि creation of a child process was unsuccessful.
चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं होगा तो नेगेटिव वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। अगर 0 आया तो इट विल रिटर्न टू अ न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस, एंड पॉजिटिव वैल्यू आती है तो रिटर्न टू द पेरेंट और कॉलर द वैल्यू कंटेन्स प्रोसेस आईडी ऑफ द न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस। तो ये रिटर्न मतलब ये बेसिकली ये भी क्रिएट करेगा, लेकिन ये आपके पेरेंट को रिटर्न करेगा, यहाँ पर चाइल्ड रिटर्न करेगा यहाँ पर। ओके, सो बेसिकली अगर आपको यूज करना है तो एक काम करते हैं सिंपल, मैं जीमेल के अंदर आपको एक बार करके बताता हूँ, शायद हो जाए। सो हमारा कहीं से कॉपी पेस्ट कुछ मिल जाए, ये वाला हम लोग लेते हैं। अच्छा, यू नीड टू ऐड सम हेडर फाइल। ओके, ये हेडर फाइल्स इंपॉर्टेंट है, तो ये पहले हेडर फाइल आप लोग ले लेना। हाँ, बन ठीक है, ये मैंने यूज किया सिर्फ फॉग, सिर्फ इतना मैंने लिखा, ठीक है। नाम दे दिया मैंने FORK फॉग डॉट सी। ओके, ये सी प्रोग्राम, मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। आपको प्रोग्राम बनाना है और आपको इसको कंप्लीट करना है। डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। F8 प्रोग्राम हो गया, कंपाइलेशन फिनिश सक्सेसफुली। F9 F5 कुछ हुआ, बेसिकली हुआ, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? बिकॉज हम लोग ने whatever value your phone system call has returned, we have not taken care of that particular value. Okay, so how you can take care of this particular value? As I told you that your phone system call returns a value. Okay, if it is returning a value, then it is your responsibility to take it. Okay, so you can take it in the I variable. ठीक है, so int I में ले लिया आपने, और नीचे आप कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाया हूँ, इफ i इज इक्वल टू 0, तो ये एल्स इफ i इज लेस देन 0, मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू है तो चाइल्ड प्रोसेस नॉट क्रिएटेड। और एल्स के अंदर हम लोग सिंपली, अगर आप प्रोग्राम देखोगे तो आप यही पे समझ जाओगे, यही यही बेसिकली प्रोग्राम आपको करना है। अगर आप समझ गए यहीं पे तो आप लोग इसको खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग एक छोटा सा सैंपल देखते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा सीन समझ में आए, ठीक है। सो मैं आप लोग यहाँ से छोटा सा इसको कॉपी कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। सो कंट्रोल सी, अंदर आ गया मैं। इफ आई इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया हमारा चाइल्ड क्रिएट हो गया, और गेट पीपीआईडी और गेट पीआईडी, यही मेथड बोला ना हम लोग को उसने, कहाँ जरा देखो, ये दो मेथड बोला, गेट पीआईडी एंड get ppid are the two methods from which you can take the IDs of all of them, ठीक है। तो सबकी आईडी हम लोग को समझ में आएगी। एक्सपेरिमेंट्स, चलो, तो यही यही दो मेथड्स हैं, ठीक है। और अगर कभी आई की वैल्यू अगर 0 से कम है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू का क्या बोलते हैं हमारे गूगल भाई साहब, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब कि चाइल्ड प्रोसेस क्रिएशन वाज अनसक्सेसफुल, मतलब क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो क्रिएट नहीं हुआ, और पॉजिटिव वैल्यू और 0 आई तो मतलब क्रिएट हुआ। लेकिन अगर 0 वैल्यू आती है तो कंट्रोल जाएगा चाइल्ड के पास में, और पॉजिटिव वैल्यू आती है कंट्रोल जाएगा आपके पेरेंट के पास, ठीक है। तो सिंपल ये आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है। देखते हैं इसका क्या आता है। तो यहाँ पर ये सिंपल हम लोग ने मैसेज डिस्प्ले किया, चाइल्ड प्रोसेस नॉट क्रिएटेड, और ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। अगर कभी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है तो आपको वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। और 0 मिलेंगी तो फिर वो सिंपली गेट पीपीआईडी, और गेट पीआईडी क्या करेगा, सिंपल आईडीज जो आपके प्रोसेस की आईडीज है उनको प्रिंट कर देगा। These are the two methods from which you can print the IDs of child and parent. Okay, तो simple save F8 F9, देखो कोई एरर भी नहीं आपको मिलेगा, बिकॉज सिंपल प्रोग्राम है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। F5 parent equals to 4858, this is the process ID of the parent process, and child की जो child का जो ID है, child process का जो ID है वो है 485। ओके, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा अगर कभी कॉमन सेंस भी यूज करेंगे, 4858 उसके बाद में चाइल्ड क्रिएट हुआ तो ऑब्वियसली उसके बाद में आना चाहिए 485। ओके, सो बेसिकली दिस इज सिंपल। तो अगर इसको आप लोग यूज करेंगे तो सिंपली वॉट एवर वैल्यू योर फोक इज रिटर्निंग, यू हैव टू सेव इट इन वेरिएबल, एंड दैट पर्टिकुलर वेरिएबल को आप लोग यूज कर सकते हैं इफ एल्स कंडीशन पर, ठीक है। सो इट इज द हाफ पार्ट, सो इट इज द हाफ पार्ट एक्चुअली
इसको अगर चाहिए तो आप लोग और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दी वेरियस मेथड विच आर यूज विच आर रिलेटेड विद द फॉग सिस्टम कॉल। फॉग सिस्टम कॉल के रिलेटेड और कौन कौन से मेथड है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं, लाइक दे हैव गिवन और नॉट, आई डोंट नो। देखो इन्होंने भी एक प्रोग्राम लिखा है, तो इन्होंने बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। देखो एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे अगर आप कभी आप लोग करेंगे, चलो हम लोग ने एक बार किया ना इसको हम लोग ने, तो एक बार और करो। इंट जे, क्या इम्पैक्ट होता है, यू कैन डू द कस्टमाइजेशन, ठीक है। क्या हुआ अगर आपने दो बार, तीन बार, चार बार अगर फॉग सिस्टम कॉल को कॉल किए, तो उसको आप लोग ने क्रिएट की, तो उतने 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 चाइल्ड उतने आपके क्रिएट होना चाहिए, या होंगे या नहीं होंगे, वो आप लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैंने और एक फॉग सिस्टम कॉल कॉल किया, ठीक है। अभी यहाँ पर उसका आई और जे अलग अलग रहेगा, अभी जे को अलग कंपेयर करने का आपको, तो लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देखो जे यहाँ पर एक्चुअली नहीं है, तो मेरा लिए इसको आप लोग बाद में करना। यहाँ पर सिंपल आपको पहले ये बताना था, पर्पस ये था कि एटलीस्ट यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फोक सिस्टम कॉल। Basically, fork system call is the one from which you can create a child process. Okay, and we have two methods which are associated with the fork system call. One is the get PID and second is the get PPID. Okay, so get PPID मतलब parent का process ID, parent process ID. Okay, और get PID मतलब get process की ID, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मतलब के दोनों की आईडीज को वो प्रिंट कर सकता है, ठीक है। So these are the two methods which we have printed the value, not the value. These are the process ID basically. Okay. अच्छा जी, जैसे ही आप लोग को आउटपुट मिला है F5, कहाँ गया रे भाई आउटपुट, सेव नहीं किया उन्होंने, कंट्रोल एस, अच्छा कंपाइल नहीं किए थे दोबारा, तो अरे वाह, क्या हुआ, अरे बोलो क्या इश्यू है। अब आया, चाइल्ड की देखो बाद में काफी, देखो एवरी टाइम इट इज गेटिंग चेंज, ओके। बिकॉज जब जब आप लोग प्रोग्राम रन करोगे तो जाहिर बात है आपका पेरेंट तो और है और चाइल्ड कोई और बनेगा, तो उसके हिसाब से जो प्रोसेस आईडी है वो हर बार अलग अलग आपको मिलती जाएंगी। वापस से मैं एक बार रन करता हूँ, तो देखो इस बार सेम मिल गई हम लोग को। थोड़ी थोड़े टाइम के बाद मैं रन करूंगा तो हो सकता है कि मुझे कुछ आईडीज अलग, सो दीज आर बेसिकली द आईडीज, ओके, जो कि आप अपने अपने सिस्टम के कोई कमांड डाल के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम वेयर यू हैव टू पुट अ फोकस, यू हैव टू पुट योर फोकस ऑन द सिस्टम को, ठीक है। तो क्या करना है बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के अंदर, आपको सबसे पहले तो सिस्टम कॉल के बारे में, आई टोल्ड यू, ये आपका स्केच है जिसके अंदर आपको सब कैटेगरीज के बारे में बताना है। तो प्रोसेस कंट्रोल और फिर आपका जितने भी सिस्टम कॉल की कैटेगरीज व्हाट एवर आई हैव मेंशन इन द स्लाइड, दैट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर आल्सो, and you need to explain each and every system call by making use of the internet or book or the or from wherever you can take the data। तो वहां से आपको डेटा डाल के यहाँ पर डेटा पुट अप करना है। और जैसे स्लाइड के अंदर मैंने एग्जांपल भी दिया हूँ फॉर विंडोज एंड फॉर लिनक्स, ओके। तो वैसा ही फॉर विंडोज एंड फॉर लिनक्स आपको दोनों दोनों मेंशन करना है, जो मैंने वहां मेंशन किया वो आपको वहां पे कॉपी करना है। तो उसको आपको नो, इट इज लाइक अ केस स्टडी आल्सो, ओके। So you are studying about the system call. So this is a dual study, you are studying in the theory session also and in the practical session also, okay। So is that clear to everyone what we have to do in this particular experiment? समझ में आया क्या करना है? अरे बोलो क्या करना है हम लोग को उसके अंदर, कुछ खास कुछ भी नहीं करना है, शायद दो ही लोग को समझा, बाकी ठीक है भाई चलो। सो ये कैटेगरीज होने के बाद में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरी पार्ट, यू कैन वी डिड द सेम थिंग इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1। कहाँ किया हम लोगों ने, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या किया भाई हम लोगों ने, ओके 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 ओके। अच्छा यहाँ पर डाला है अलग से इसमें ना,
कोई इशू नहीं, डालो, वापस से डाल दो, लेकिन ज्यादा डिटेल में डालने के बजाय थोड़ा सा शॉर्ट कर देना। यानी कि जो कैटेगरीज है, जस्ट मेंशन दोस कैटेगरीज, और उनके जो एग्जांपल्स जो मैंने स्लाइड में बताया आपको, फॉर विंडोज एंड फॉर वो उतना 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 मेंशन कर देना। देन उसके बाद में आपका प्रोग्राम, उसके बाद में आपका प्रोग्राम, और उसके बाद में आपका आउटपुट, आउटपुट, और लास्ट में कंक्लूजन। ओके, बस। तो इतना तो मेंशन, अब चलो दो बार उसने रिपीट किया है। हालांकि देखा जाए ना, लास्ट ईयर ये सिर्फ आपका ना बेसिक लिनक्स कमांड का एक्सपेरिमेंट था। अब उसने भाई साहब ने उसको उसके अंदर सिस्टम कॉल को भी इंसर्ट कर दिया है, तो अभी जाने दो, कोई बात नहीं। तो उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं, कोई मतलब आपको लिखना तो है नहीं, आपको जस्ट कॉपी और पेस्ट करना है, ठीक है। सो वो चलो हमारा रिपीट हो जाएगा, नॉट अ बिग थिंग। So basically, this particular fourth experiment output का screenshot, yes you can take the screenshot also, screenshot ले लो, because obviously लास्ट में तो उसको आप लोग उसको पीडीएफ में करने वाले हैं, so कोई इशू नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, और वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बट हैव जस्ट स्टडी ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, कैसे ये आ रहा है, ओके। और उसके बाद में फिर और प्रोग्राम थोड़ा स्टडी करना, और उसमें क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, इफ देयर आर एनी एनी अदर मेथड लाइक गेट पीआईडी, गेट पीपीआईडी के अलावा भी कुछ अगर मेथड मिलते हैं, देन ट्राई टू ऐड दोस आल्सो, ठीक है, सो दैट द वेटेज ऑफ द प्रोग्राम विल गेट थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। सो वी आर डन विद द फोर्थ एक्सपेरिमेंट, कुछ ज्यादा खास इसमें है नहीं, ओके। ठीक है, यहाँ तक हमारा थोड़ा सा वो पार्ट था। उसके बाद में हम जितने भी हमारा आगे हम लोग करेंगे, तो ये सब हमारे एल्गोरिथम बेस्ड रहेंगे, ठीक है। implementation in C language or in Python language, we have to implement scheduling algorithm, we have to implement producer consumer problem and all that, वो आगे चलेंगे, ठीक है। सो जब हो गया तो फिर जबरदस्ती हम लोग वो नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इतना काम आप लोग को करना है। क्लोजिंग द लिंक, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।